बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा। Yes, Manoj. Thank you. The cake cutting is done, and I congratulate all of you, all Rotary Club of Bombay West, all the past presidents, all the members on the 67th birthday of Rotary Club of Bombay West. Our club, Rotary Club of Bombay West, was the second oldest club in Bombay. On 22nd of this month, we have completed 67 years. And in 67 long years after formation in 22nd of April 1954, we have done so much work, and we have done work in all fields. We have our Rotary Center, Rotary Medical Center, with a full building in Juhu. We have a Shruti School. We have DG Goenka Blood Bank in BSES. We have done so many projects. Now all this is because of the foresightness of our seniors and past presidents who have done all the work and left us with the legacy. And we are enjoying the legacy with building in Juhu, 2 buildings in Juhu, in fact. During celebration of our club, we know all our projects that we have done. I think after celebration of the club, this will announce the birthdays of this time. Rotarians' birthday were on 17th April, Rotarian Narendra Parekh. On 21st April, Rotarian Manak Chand Rathod. Rotary Ann birthday. On 15th April, Rotary Ann Dipali Nandivardhan Jain. On 18th April, Rotary Ann Snesh Namlal Khanna. On 20th April, Rotary Ann Baiju Shyam Shah. And anniversaries: on 16th April, Rotarian Tushar Desai and Brinda. On 19th April, Rotarian Kalpana Sarangi and Devashish Mishra. Further, after that week, we had birthdays of Rotarians. On 24th April, Rotarian Usha Jayachandran. On 25th April, Rotarian Gautam Chande. On 27th April, Rotarian Vijay Javeri. Anniversaries were 2nd April, Rotarian Ramesh Damani and Sashi. On 26th April, Rotarian Srinivas Rao and Padmavati. We wish them all the best and very happy birthdays and anniversaries and very happy year and life to go. Thank you. Now, today, celebrating our charter night, we have our special guest, Rohit Sharma, who is a Kavi. You have heard him on occasions in various places, and he's an excellent Kavi and a stand-up comedian. So he'll be giving us good stand-up comedy and or entertainment during this. I would request Bhavna to introduce today's guest, Rohit. Hello. Rohit Sharma is a very famous one-liner poet. He has performed in many TV shows such as Wah Wah Kya Baat Hai, Remand Comedy. He performs in Very low volume. Can't hear. Okay. The volume is too low. Yeah. Do you want me to repeat it? Yeah, you can start from the beginning. Rohit Sharma is a very famous one-liner poet. He has performed in many television shows such as Wah Wah Kya Baat Hai. He performs in Johnny Lever show as well. He is the first poet from Mumbai city invited in the most popular show on Aaj Tak, hosted by Dr. Kumar Vishwas. He has his satire and poetry published in many newspapers and magazines to his credit. He is known as a humor poet and has been awarded
in India's top 50 icon awards in Mumbai. जिंदगी रोज नए रूप में ढल जाती है, ये कोरोना की वजह से। कभी दुश्मन तो कभी दोस्त बन के नजर आती है। कल रात में हुई हल्की सी बारिश ने मन को मोह लिया। कभी छा जाए घटा बिन बादल, कभी एक बूंद को भी यह रूह तरस जाती है। और कभी हमारी रूह जो तरस रही है आपको सुनने के लिए, वो है रोहित शर्मा जी। मैं बुला लूं उनको? हाँ, जरा संभलना, बस इतना ना हो कि आप कुर्सी से गिर जाए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए for none other than our today's speaker, Mr. Rohit Sharma. So I welcome Rohit ji. थैंक यू सो मच डॉक्टर भावना जी, डॉक्टर मनोज जी और तमाम जितने भी रोटरी क्लब के मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि आज इस महफिल में एहतराम करता हूं, आज इस महफिल में एहतराम करता हूं, शुक्रिया के साथ साथ राम राम करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। मैं डॉक्टर भावना जी का और डॉक्टर मनोज जी का बहुत आभारी हूं कि उनके माध्यम से आप तक पहुंचने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं 2-3 बातें पहले कर लूं, हंसाने के पहले आपको 2-3 निवेदन कर लूं, क्योंकि मैंने रोटरी क्लब के बहुत से प्रोग्राम किए हैं लाइव, ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ है। और जब इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम के लिए भी जब डॉक्टर भावना जी ने, डॉक्टर मनोज जी ने मुझसे कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि रोटरी क्लब के मेंबर्स बहुत अच्छा सुनते हैं हमेशा से। और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जितने भी फंड रेजिंग शोज हमने देश भर में किए, अलग अलग जगह जाता हूँ, करता हूँ, तो जो भी आप लोग सोशल सर्विस करते हैं, हम उसमें हमारा भी सहयोग होता है। और जितना भी हम टारगेट था, जितने भी बार रोटरी क्लब का टारगेट था फंड रेजिंग का, उससे 2x 3 टाइम्स हमेशा कवि सम्मेलन के माध्यम से, लाफ्टर शो के माध्यम से हमें सौभाग्य मिला है फंड जुटाने का। आज आप लोग ने भी हमेशा लाइव हमें सुना है, कहते हैं कि कलाकार और श्रोता के बीच की दूरी जितनी कम होती है, आनंद उतना ज्यादा होता है। लेकिन आज हम कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन मिल रहे हैं, हमें एक तार ने जोड़े रखा है, लेकिन अगर मैं आपके दिल के एक तार को भी झंकृत करने में अगर कामयाब हुआ तो आज का ये शो सक्सेसफुल माना जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन सुनाना बहुत कठिन काम है और उससे भी कठिन काम है ऑनलाइन सुनना। एक कठिन काम मैं करता हूं, एक कठिन काम आप करिए, और 20-25 मिनट जितने मेरे पास हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने चेहरे पे अगर 1 इंच की मुस्कान भी आ जाएगी तो आज की ये शाम सार्थक हो जाएगी। और 1-2 निवेदन और कि जो लोग भी अनम्यूट रखना चाहते हैं, जो लोग भी मैसेज बॉक्स में अगर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि एक जैसे डॉक्टर भावना ने बताया था कि हम लोग वेबिनार नहीं कर रहे हैं कि बहुत बोरिंग होगा, आप अकेले बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा कष्ट होगा आपको टाइप करने के लिए, लेकिन कोई भी बात जब मैं कहूं और अगर आपको अच्छी लगे दिल से, तो आप अगर वहां या कुछ भी छोटा सा लिख देंगे तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि आप अच्छा सुन रहे हैं। क्योंकि अगर लाइव में होते तो मैं तो आपसे तालियां बजवा ही लेता, लेकिन ऑनलाइन में मजबूरी है, मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तालियां बजेगी। थैंक यू सो मच। और मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब जितनी भी देर आप और मैं हैं, ये संवाद जारी है। अपने दिमाग में जो भी तनाव आपका चल रहा होगा उसे भूलकर मेरी हास्य की दुनिया में आ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको रोहित शर्मा याद रहे या ना रहे, लेकिन मेरे द्वारा की गई कोई ना कोई बात आपको जरूर याद रहेगी। क्योंकि देखिए, आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। और मुझे याद है कि एक चीनी बादशाह की मौत हुई, वो अपनी पत्नी के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। उसकी पत्नी ने घर के नौकर से शादी कर ली। उस दिन नौकर ने कहा कि मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मैं मालिक के लिए काम करता हूं, आज समझ में आया मालिक मेरे लिए काम करते थे। तो हमें हंसने के लिए समय निकालना चाहिए। और डॉक्टर्स ही मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर मनोज जी भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी हमेशा कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। तो हम लोग हंसते रहेंगे तो हमें बहुत कम बीमारियां छू पाएंगी, क्योंकि हंसने से बेहतर कोई योग नहीं है।
तब सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। कोई भी, ये आपके क्लब के लिए भी शुक्रिया संपति जी, आपका कमेंट, पहला कमेंट आपका आया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये क्लब के लिए भी ये पंक्तियां हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मेंबर्स के लिए क्या कह रहा है, और ये उस पर भी लागू है कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाए तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर, कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। तो कहीं ना कहीं ये हमें जोड़ के रखने की बात है। हाँ, बीच बीच में जो भी कोई आप लोग कहना भी चाहें, कोई बात नहीं, आपकी बात भी आ जाएगी। हाँ, अब आ रही है। कविता जी शुक्रिया, गौतम जी कांग्रेचुलेशन, क्या बात है। बस ऐसे ही आपके कमेंट आते रहेंगे, मुझे लगेगा मेरी बात आप तक बहुत अच्छा। और तो देखिए अब तो श्रॉफ जी, बाला साहब जी सुन रहे हैं। देखिए अभी तो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा है, आप कई डॉक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, जितना भी पूरा सोशल मीडिया ना वैक्सीन लेते समय की फोटो से भरा हुआ है। मेरा एक सवाल है, डॉक्टर मनोज जी भी मुझे सुन रहे हैं, बताएंगे कि सर एक बात बताइए, अगर वैक्सीन लेते समय अपन फोटो नहीं खिंचाओ तो वैक्सीन असर नहीं करती क्या? नहीं, नाटक के लिए है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हमारे लिए तो वैक्सीन खुली नहीं है, 18 के ऊपर के लिए वैक्सीन अभी खुली नहीं है, तो हमारी तो हुई नहीं अभी तक, छोटे ही हैं हम तो। लेकिन आज जब ओपन किया उन्होंने, तो आज तो वो मतलब वो वाली फीलिंग आ रही कि यार अपन तत्काल टिकट बुक करते हैं, वो भी नहीं होती, वैसे ही आज रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था। तो लेकिन बहुत अच्छा है। और एक सवाल है मेरा कि जितने भी लोग ये फोटो डाल रहे थे सोशल मीडिया पे इन दिनों वैक्सीन लेते समय, तो वैक्सीन लेते समय जो फोटो क्लिक करना है उसके लिए आदमी घर से लेके जाना है या वहां मिलता है? वहां से भी ले सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था मेरा, लेकिन बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत, जैसा आप अभी डॉक्टर मनोज जी ने बताया कि जब वैक्सीन शुरू की गई तो पहले मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर के लिए की गई है ना, हेल्थ लाइन जो भी मेडिकल फील्ड में है, फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई। तो जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया, जितना भी वैक्सीन जिन्होंने भी ली वो अधिकांश पुरुषों ने ही ली है, महिलाओं ने ली नहीं, क्योंकि महिला ले तब जब खुद को सीनियर सिटीजन माने। हाँ, तो 18 के ऊपर की होगी तभी लेंगे। बस वही बात है सर। और मैं तो आपको बताऊं, ये सारी महिलाओं का जो एसोसिएशन था ना, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया। इन्होंने कहा आप क्या जानो हमारा दर्द, नोटबंदी में छुपे हुए नोट बाहर आ गए और वैक्सीनेशन में छुपी हुई उम्र बाहर आ गई। वाह, अद्भुत। इनका भी देखिए दर्द है। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन रहा सारी महिलाओं को। मोना जी के भी लाफ्टर आ रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन रहा। मोना जी बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि अगर वैक्सीन ना लो तो जान को खतरा, और वैक्सीन लो तो शान को खतरा, तो करे क्या? तो बड़ा कंफ्यूजन सबका रहा है। लेकिन देखिए हो रहे हैं, जो भी काम होने वाले हैं वो तो हो ही रहे हैं। जैसे शादियां हो ही रही हैं, भला ही 25 लोगों की परमिशन है, किसी स्टेट में 50 लोगों की परमिशन है, लेकिन करने वाले कर ही रहे हैं। अब तो घर पे जब शादी का कार्ड भी आता है तो उस पर लिखा रहता है RAC 12, हाँ, कि इसका मतलब अगर कोई कैंसिल करेगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो मेरे तो फैमिली में एक है कजिन, उसकी शादी हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि भैया मैं सबको इनवाइट तो करना चाहता हूँ, कार्ड भेजना चाहता हूँ, लेकिन परमिशन बहुत कम लोगों की है, तो ऐसी कोई टैगलाइन लिख दो 4, जिससे कि सबको ये मैसेज चला जाए कि आना नहीं है, घर से ही आशीर्वाद देना है। अब हम तो हास्य कवि हैं, हास्य की बात करते, तो मैंने उसको 4 पंक्तियां लिख करके दी। मैंने उससे कहा कि लिख दे कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण केवल तुम्हें दिखाने को, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण केवल तुम्हें दिखाने को, हे मानस के राजहंस तुम आ मत जाना खाने को। हाँ, वाह, शहीद होने को लोग तैयार है अभी भी। अरे सर, और मैं आपको बताऊं एक बात कि ये जितने भी लोग कोरोना काल में शादी कर रहे हैं ना, इनको 2 साल बाद समझ में आएगा कि इस मुसीबत से तो कोरोना ही ठीक था। तो इनको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन दीप जी शुक्रिया, आपका कमेंट आ रहा है। बस ऐसे ये संवाद धीरे धीरे हम लोग जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे सुन रहे हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, शेफाली जी शुक्रिया। देखिए अच्छा क्या है, मैंने जब अभी तो कोलकाता में एक ऐसा शहर है जहां लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे किए अभी इन दिनों। तो मैंने एयरपोर्ट पर देखा कि लोगों ने मास्क जो पहना है वो ब्रांडेड कंपनी का पहनने लग गए हैं। कोई पूमा का पहन रहा है, कोई मार्क स्पेंसर का पहन रहा है। यही प्रॉब्लम इंडियन के साथ है, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोगों को कोरोना को भगाना है, उसको इम्प्रेस थोड़ी करना है।
हाँ, लेकिन कमल जी मैं आपको बताऊं, लोग मान नहीं रहे। हाँ, ब्रांडेड, उसमें भी ब्रांडेड पहनने लग गए। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक कविता आपको छोटी सुनाता हूँ ह्यूमर की। आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना भी समय मेरे पास है। शुक्रिया गौतम जी, अच्छा लगा आपका कमेंट आया। एक दिन भगवान मेरे सपने में आए, मैंने उनसे कुछ बातचीत की। बस वो बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ, और आप मस्ती के मूड में सुन रहे हैं इसलिए केवल मस्ती के मूड में सुनिएगा। बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है निर्मला जी। सुनते समय मैं नहीं लगाता हूँ, तो सुनते समय आप क्यों लगाओ। तो मैं, सुनिए, आपको आनंद आएगा, और एक एक पंक्ति पर आपका कमेंट आएगा। दावा करता हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि हे कृष्ण, आप इस कलयुग में आके तो देखो। आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। वाह। हाँ, आपने जवानी में कंस को मारा, दाऊद को हाथ लगा के तो देखो। आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका की साड़ी पहना के तो देखो। आपने 16,000 गोपियों को अपनाया, आज एक का खर्चा तो उठा के देखो। और आपने भव्य सागर पार किया, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो। बढ़िया है। शुक्रिया, शुक्रिया सबका। नीलेश जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। तो देखिए, लेकिन ये बात मैंने कही, लेकिन ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्ण अर्जुन जैसा होना चाहिए। आप तो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप सब मुझे सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि महाभारत के वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर जो जवाब अर्जुन ने दिया, किशन जी, वो सुनिए, कमाल का है। और आप सब जितने भी लोग मुझे कमेंट आएंगे, दावा करता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। शुक्रिया, शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड था, नॉइस हो सकता है कहीं होगा, लेकिन अब म्यूट हो गया, अब ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, माखन चोर है मेरे पास, क्या बात है। चलो, ये लाइन आपकी आगे, इसका मतलब आप लोगों ने सुन लिया। मुझे लगा क्या पता ये बात पहुंच। शुक्रिया शिवाली जी, शुक्रिया। हाँ, ये ऑनलाइन में यही समझ में नहीं आता कि कब नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, पंच लाइन ही चली जाती है। तो लेकिन शुक्रिया गीता जी, अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। देखिए कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, और ये बात मैं छुपाता भी नहीं। सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। हाँ, मैं तो मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। तो हमारा तो सब कोई जवाब नहीं होता। हम लोग तो अद्भुत लोग होते हैं। मुझे तो अभी कह रहे थे, मेरा फ्रेंड ने एक दिन मुझसे कहा कि यार रोहित, तुझे बता कि जिंदगी में तुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैंने कहा पैसा। बोले पैसे को साइड में रख, अब बता क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा साइड में रखा हुआ पैसा। तो हमारे साथ यही समस्या है। मोना जी, मैं आपको बताऊं, अच्छा आपको एक नुस्खा बताता हूं, कभी अगर देसी मारवाड़ी की पहचान करनी हो तो। अच्छा निर्मला जी, हम भी मारवाड़ी हैं, क्या बात है निर्मला जी, राम राम। तो यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम हर जगह ही होते हैं सर, हम हर जगह बहुत ही होते हैं। मतलब आप बताओ मैं आपको सर, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, मैं जहां शो करने जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जो लोग लेने आते हैं ना, उसमें से 2 लोग ये सवाल जरूर पूछते थे खटका हो जी। तो हम तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन 2 ही लोग हैं। जी सर, वेरी क्लोज टू, छा गए हैं अरे नहीं सर, बस आप, हम लोग कोशिश करते हैं, दुनिया आप पे लोग छा गए हैं। सर बिल्कुल, थैंक यू सर, ये आप लोगों के प्यार की वजह से लेकिन हो पाता है। हम कुछ भी कहने को कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर सुनने वाले ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हमारे से ज्यादा आप लोग महत्वपूर्ण हैं, जो हमें मौका देते हैं, जो हमें मंच देते हैं।
यानी मैं जो खुद भी हंसने मारवाड़ी जो, हाँ कुछ मैं मिस कर गया कमेंट, ठीक है। तो मारवाड़ी लोग बड़े अद्भुत होते हैं। एक मारवाड़ी आदमी गया टैटू बनवाने के लिए, बोले भाई टैटू बनवाना है, तो दुकानदार ने पूछा कौन सा बनाऊं, तो आदमी ने कहा कौन सा बनाना चाहिए, लोग कैसा बनाते हैं, तो उस दुकानदार ने कहा देखो सर, लोग टैटू वो बनाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बारे में वो दिन रात सोचते हैं, जिसके बिना वो रह नहीं सकते। तो मारवाड़ी आदमी बोला ठीक है यार, फिर तू 2000 की गड्डी बना दे। मैं वही 2000 की सोचता नोट हूं, लगा। हम तो वही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए आप तो बहुत सारे डॉक्टर भी मुझे सुन रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। इसमें मारवाड़ी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा है। तो हमारा तो डॉक्टर उषा जी कोई जवाब नहीं है। मैं तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ ना, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। हिमा जी, मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। तो है ना दीप जी, असली बात, बस सही बात आपने लिखा। तो दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे, तो मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले रोहित बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया, गौतम जी, दादाजी क्या कह रहे सुनिए। दादाजी ने कहा रोहित बेटा मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा अच्छा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। मारवाड़ी लोग बड़े अद्भुत होते हैं। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं सब में ह्यूमर है कृष्णा जी, सब में हास्य है होना जी। लेकिन आप लोग व्यस्त लोग हैं, आपके पास समय नहीं है देखने का, ऑब्जर्व करने का, और मेरे पास समय के अलावा कुछ भी नहीं है। गुजराती भाषा के अंदर भी क्या ह्यूमर है। मैं तो बचपन में कोशिश की थी गुजराती सीखने की, लेकिन मैं सीख नहीं पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा। मेरे पड़ोस में भी गुजराती परिवार रहता है, तो आपके यहाँ तो एक शब्द में ही हास्य है, केवल एक शब्द में। मेरे पड़ोस में गुजराती परिवार रहता है, मैंने दरवाजा ठकठकाया, महिला ने दरवाजा खोला, मैंने कहा आपके पति हैं? बोली 6। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन हर भाषा में ह्यूमर है, हर भाषा में। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। आपको याद होगा जब चंद्रयान भेजा गया था तो बताया गया था कि 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूटा था। आपको बताऊं कॉलेज के जमाने में मैं भी एक चांद के करीब गया था, फिर उसके पिताजी को पता चल गया था और मेरा भी संपर्क टूट गया था। तो ये तो अधिकांश लोगों के साथ होता है। तो आपको बताऊं जब चंद्रयान का वो मिशन 2 किलोमीटर की वजह से संपर्क टूटा, तो उन्होंने 3 साइंटिस्ट को बुलाया नासा वालों ने, एक जापान के, एक जर्मनी के, एक महाराष्ट्र के। तो जापान के साइंटिस्ट से पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया था क्या? तो उन्होंने कहा किया था। जर्मनी वाले ने कहा कि मैनुअल टेस्टिंग की थी क्या? तो उन्होंने कहा की थी। तीसरा साइंटिस्ट महाराष्ट्र का था, मुंबई का था, उसने इसरो वाले से कहा कि हल्दी कुकू केला होता का। तो हमारा कोई जवाब ही नहीं, हम बड़े अद्भुत लोग होते हैं। और मुंबई में हम लोग रहते हैं, हम सब जो भी जितने भी सालों से मुंबई में रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि ना हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, हम लोग मुंबईया भाषा बोलते हैं, है ना। और इस भाषा में भी बहुत ह्यूमर है, अगर आप कभी ध्यान से सुनो। मैं अभी एक बार, टू गुड, थैंक यू दीप जी। तो मैं अभी एक जगह शो करने जा रहा था, अब भाईदास हॉल की बात है, कुछ साल पहले की। तो मेट्रो का काम चल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ से टर्न लेना है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा सर भाईदास हॉल जाना है, एड्रेस बताएंगे? तो उसने मुझसे कहा इधर से सीधी सड़क पकड़ने का। मैंने कहा पकड़ने का कि चलने का? बोला बीच में नहीं बोलने का। इधर से सीधी सड़क पकड़ने का, लेफ्ट मारने का, मंदिर गिरेगा। मैंने कहा मंदिर गिरेगा तो जाएगा कैसे? बोला ना बीच में नहीं बोलने का। इधर से सीधी सड़क पकड़ने का, लेफ्ट मारने का, मंदिर गिरेगा, राइट मारने का, मस्जिद गिरेगा। मैंने कहा भाई तू मंदिर भी गिराएगा, मस्जिद भी गिराएगा, एड्रेस बताएगा कि दंगा कराएगा यार। बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबके कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा तो वाकई में कोई जवाब ही नहीं, हिंदुस्तानियों का कोई जवाब नहीं है ना नीलेश जी? हिंदुस्तानियों का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। मुझे याद है गौतम जी ने कहा सही बोला बिड़ू, बिल्कुल सही गौतम जी, एकदम सही। आप भी एकदम मुंबई एक्सेंट में आ गए हैं। गीता जी क्या बात है। तो यही है, होना भी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। रूपांदे जी थैंक यू। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, इसमें बहुत कम ऑनलाइन शोज करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चैलेंज है ऑनलाइन शो में, क्योंकि ऑनलाइन में ना केवल
संवेदनाएं सुनाई जा सकती है, वेदना नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है अब तक, और जितना भी समय मेरे पास है मैं आपको सुना देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। शुक्रिया महेश जी। मुझे हिंदुस्तानी में कोई जवाब नहीं है। एक जापानीज आया हिंदुस्तान घूमने, उसने एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए ऑटो किया, रास्ता में होंडा कार ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ देर और आगे जाने पे टोयोटा कार ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। इतने में होटल आ गया। जापानीज ने ऑटो वाले से पूछा हाउ मच? ऑटो वाला बोला 2000 रुपीज। जापानीज बोला दिस इज टू मच। ऑटो वाला बोला सर मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। हमारा कोई जवाब नहीं, हिंदुस्तान को कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। एक अंग्रेज आया मेरे घर, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैं उसको तुलसी माता के पौधों के पास ले गया। मैंने कहा तुलसी माता है। तो बोले क्या पेड़ पौधे तुम्हारे यहाँ माता होते हैं? मैंने कहा हाँ। तो तुलसी माता को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दी और मेरे हाथ में दे दी। बोले ले तेरी माता। अब अंदर का मेरा भारतीय जगह, मैं उसको एक खुजली वाले पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। फिर उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। फिर पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया कि उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा होते थे। बढ़िया है। हाँ, हिंदुस्तानियों का सर कोई जवाब नहीं है। हम लोग तो अद्भुत लोग हैं, हमारा तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। एक अमेरिकन डॉक्टर आया हिंदुस्तान घूमने, उसने अंधेरी रेलवे स्टेशन पर बुक के स्टॉल पर एक बुक देखी और बेहोश हो गया। बुक का टाइटल था हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन 30 डेज। लाफ्टर अगली पंक्ति पर आएगा MRP 15 रुपए। तो ये हिंदुस्तान का वाकई में कोई जवाब नहीं होता है। मेरी आवाज आप सब तक ठीक आ रही है? Yes. हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए हिंदुस्तान का मैं कह रहा था ना, वाकई में, और हमारे यहाँ तो थैंक यू सो मच अपूर्वा जी। तो हमारा कोई वाकई में जवाब नहीं है। आपको बताऊं, देखिए ह्यूमर कैसा है हिंदुस्तान में। मुझे याद है गांव में एक आदमी अपने घर के पीछे मिट्टी खोद रहा था पेड़ लगाने के लिए। तो उसको एक कुछ अजीब सा डिवाइस दिखा, उसने उस पर मिट्टी पहुंची, इतने में जिन्न प्रकट हुआ। तो जिन्न ने कहा कि तुम कोई भी 3 इच्छा मांग लो, बस शर्त यही है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उसका दोगुना मिलेगा। अब ये आदमी टेंशन में आ गया। फिर इसने कहा कि जिन्न भाई मुझे तो 1 करोड़ रुपए दे दो। तो जिन्न ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ मिल जाते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे 2 बंगले दे दो। तो जिन्न ने कहा ठीक है, तुम्हें 2 बंगले दे दिए जाते हैं, पड़ोसी को 4 बंगले दे दिए जाते हैं। अब तीसरी ख्वाहिश बची थी। अब उसको लगा हिंदुस्तानी को कि यार मैं जो मांग रहा हूँ मेरे पड़ोसी को दोगुना मिल रहा है, तो आखिरी ख्वाहिश क्या मांगू? आखिरी ख्वाहिश को उसने दिमाग जो लगाया, और आप तक पहुंचे कमेंट बॉक्स में बताना। उसने कहा कि जिन्न भाई मेरी तीसरी ख्वाहिश यही है कि तू मुझे मार मार के अधमरा करके। फिर वो बंगला कहाँ गया? फिर वो बंगला कहाँ गया, हमें ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर उषा जी, अरविंदर जी, क्या बात है, शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं और आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान, मैं आपको बता रहा था, बड़ा अद्भुत देश है ही हमारा। मुझे याद है एक कोर्ट के मुकदमे में जब बहुत केस जीतने के बाद जज ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से कि बधाई हो चाचा, आप केस जीत गए। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि राम लला तुम्हें इतनी तरक्की दे कि तुम्हें हवलदार बना दे। तो वकील ने समझाया उस बुजुर्ग व्यक्ति को कि बोले चाचा ये जो जज होता है ना, ये हवलदार से बहुत बड़ा होता है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरी नजर में हवलदार ही बड़ा है। तो वकील ने पूछा कैसे? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि देखो वकील साहब और जज साहब, आप दोनों ने मिलकर के मेरा केस 10 साल चलाया और मुझे भिखारी बना दिया, जबकि हवलदार जी ने दूसरे दिन कह दिया था कि 5000 रुपए दो, 2 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा। तो हिंदुस्तान अद्भुत देश है, लेकिन यहाँ की राजनीति हावी हो रही है धीरे धीरे। आप लोग देख रहे हैं इन दिनों जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है।
मुझे याद है अभी कलकत्ता में जो रैली हो रही थी, आप बहुत सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया उठाई, और अच्छी बात है कि जब तक हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सरकार को नहीं लगेगा कि कोई लोग भी हैं जो हमें देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है एक भीड़ में कलकत्ता में जब हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो एक महिला अपने बच्चे को लिए आई। अब वो बच्चा कह रहा था मोदी मोदी मोदी। तो उस महिला से एक पत्रकार ने कहा कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पॉपुलर हैं कि इस छोटे से बच्चे को भी प्रधानमंत्री का नाम याद है। तो महिला ने कहा देखो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये मोदी मोदी नहीं गोदी गोदी कह रहा है। गोदी को। हाँ, तो हर जगह ह्यूमर होता है। लेकिन जो भी अभी राज्यों के चुनाव हुए हैं, 2 मई को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो भी आए, मुझे तो पता है, देखिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। मैं आपको हंसाने के बीच बीच में कोशिश करूंगा कि अपना कवि धर्म भी निभाऊं, और आप हास्य के साथ अगर सटायर भी अच्छा सुनेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मुझे याद है फकीर जो है राजा के दरबार में गाना गाने गया, और फकीर ने गाना बहुत अच्छा गाया, तो राजा ने कहा कि फकीर बहुत अच्छा गाया, इसे हीरे की माला दे दी जाए। फकीर ने और अच्छा गाया, तो राजा ने कहा कि इसे सोने की माला भी दे दी जाए। फकीर ने और अच्छा गाया, तो राजा ने कहा कि इसे एक जो महल हमने नया बनाया वो भी इसे दे दिया जाए रहने के। अब फकीर बहुत खुश हो गया, खुश होकर के अपने घर गया। उसने घर वालों को बताया कि आज राजा जी ने हमारे गाने का बहुत सारा इनाम दिया है। घर वाले खुश हो गए। कुछ दिन बीत गए, फकीर को मिलने वाला इनाम नहीं मिला। फकीर गया फिर राजा के दरबार में और कहने लगा कि राजा जी, आपके द्वारा मिलने वाला इनाम हमें अब तक नहीं मिला। राजा ने जो जवाब दिया वो अगर भारतीय राजनीति पर सटीक बैठता हो तो आपका कमेंट मुझे चाहिए। राजा ने कहा, अरे फकीर, ये लेन देन की बात क्या करता है? तू मेरे कानों को खुश करता रहा और मैं तेरे कानों को खुश करता रहा। वाह, आनंद बढ़िया। भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही है हिंदुस्तान की राजनीति क्या है। और मैं आपको एक कविता सुनाने की हिम्मत करता हूं। आपने देखा बहुत सारे फिल्मी सेलिब्रिटी आ गए कैंपेन करने के लिए, है ना शार्दुल जी? थैंक यू, आपका कमेंट अच्छा लगा। फिल्मी सेलिब्रिटी हर बार आ जाते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, प्रमोट करने। 1 मिनट की कविता आप सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको और हंसाने की दुनिया में ले जाऊंगा जितना भी समय मेरे पास होगा। कि आओ फिल्मी सितारों, राजनीति में पधारो। कृष्णा जी सुनिए, भगवान कृष्णा हमें सुन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। कि आओ फिल्मी सितारों, राजनीति में पधारो। फिल्मों में डायरेक्टर ने तुम्हारे उतरवाए थे, अब तुम हमारे कपड़े उतारो। ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन। अरे ये तो है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का इलेक्शन। इसलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो। इसलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो। हमसे तो वोट मांगने आ गए श्रीमान, जरा ये तो बताइए आपने जीवन में कितनी बार किया है मतदान? शायद कभी नहीं। हम मानते हैं कि आपकी सभाओं में होती है भीड़ भारी। इसका मतलब ये है देश में बढ़ती बेरोजगारी। और अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की कि सितारों, आपको तो नोट मिल जाएंगे और नेताओं को वोट मिल जाएंगे, और आप पहुंच जाओगे कहीं के कहीं। 5 साल बाद जनता आपको खड़ी मिलेगी, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलेश जी। देखिए कविता सुनाने की बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कविता कम सुनना चाहते हैं, केवल एंटरटेनमेंट चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई ना कोई मैसेज जरूर होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं सब लोगों के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए जब आप लॉग आउट कर देंगे ना, तब आपको ये नहीं याद रहेगा कि रोहित शर्मा ने जुमला कौन सा सुनाया, आपको ये याद रहेगा कि रोहित शर्मा ने कविता कौन सी सुनाई। तो इसलिए मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन देखिए मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। गीता जी, नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। एक प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ राहुल जी, एक पोस्टर छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई।
सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूँ हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी मंच पे आ जाए। और आजकल तो वैसे दोनों ही सुनने लायक नहीं रहे, लेकिन अपना अपना काम है। आपकी राहुल गांधी आपको कंपटीशन दे रहा है। अच्छा, अरे नहीं सर, देखिए राहुल जी का भी अपना काम है, सब अपना अपना काम करते हैं। राजनीति में हमेशा विपक्ष की भूमिका है, होती है। लेकिन कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सबको अच्छा काम करना चाहिए देश के लिए, और जनता का काम करना चाहिए। मेन तो यही बात है। मुझे तो याद है सर, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया था ना, तो मैंने कांग्रेस के हेड ऑफिस में फोन किया था। मैंने कहा कि मैं आपकी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। तो ऑपरेटर ने मुझे चिल्लाया, उसने मुझसे कहा क्या आप बेवकूफ हैं? मैंने पूछा क्या ये जरूरी है? जरूरी है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, वो नहीं समझ पाए। तो नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। इट्स हैपनिंग, यस। हाँ, देखा, इन्होंने भी, संपत्ति जी ने भी कहा कि मैं गूगल सर्च किया रोहित शर्मा तो क्रिकेटर रोहित शर्मा आया। बिल्कुल सही है, होता ही है मेरे साथ अक्सर। तो नाम से बड़ा प्रभाव पड़ता है, और नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे याद है, एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम रख दिया धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा ये कैसा नाम रख दिया धनिया लक्ष्मण? बोले क्यों, जब हल्दी राम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण भी हो ही सकता है। हाँ, बताइए आप, नाम में तो फर्क है ना, नाम में ही ह्यूमर है। एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया अमेरिका। शार्दुल जी, अमेरिका। मैंने कहा ये कैसा नाम रख दिया अमेरिका? बोले कुछ नहीं रोहित भाई, इसी बहाने अपन अमेरिका के बाप बने बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सबका अपना अपना मत होता है, हर जगह पर हास्य होता है नीलेश जी। नाम का अपना प्रभाव है। मैं आपको बताऊं, मैं इवनिंग वॉक पर निकलता हूं तो मैं कई बार बोर्ड पढ़ता हूं। मैं एक बार इवनिंग वॉक पर, हम लोग शो में भी जाते हैं, तो मैं अक्सर बाहर जाके देखता हूं कि क्या है, और हर जगह से हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैंने इवनिंग वॉक पर देखे कुछ बोर्ड, श्यामलाल खन्ना जी शुक्रिया। इवनिंग वॉक पर मैंने कुछ बोर्ड देखे, देखिए नाम से कैसे हंसी पैदा होती है। आपको अच्छा लगेगा, अंतिम 5 मिनट है मेरे पास। तो नाम से कैसे हंसी आती है। सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। फिर थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, कलमाड़ी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स। अब बताइए कौन बैठे? सूरदास ऑप्टिकल्स, इंतमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड बड़ा अद्भुत था, उस पर आपको हंसी आएगी। उस पर लिखा था आसाराम बापू गर्ल्स हॉस्टल। हर जगह पर ह्यूमर है, हर जगह पर हास्य है। अच्छा देखिए, जितने भी अधिकांश जो भी लोग सुन रहे हैं, शुक्रिया उषा जी, शुक्रिया तेजस जी। रोटरी ने बहुत अच्छा हमेशा सुना है, और आज ये ऑनलाइन शो इतना सक्सेस हो जाना मुझे यकीनन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं फिर से डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर भावना जी का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक शो जुटाने के लिए बहुत मेहनत की है इन्होंने। लालू प्रसाद पे कुछ हो जाए, अरे सर लालू प्रसाद जी पे मैं आपको मनोज जी क्या बताऊं। मुझे याद है, लालू जी एक दिन एक दुकान में गए और उन्होंने एक चीज उठाई और बोला कि ये बंदरवा का फोटो कितने में दिया? तो दुकानदार ने कहा ढंग से देखो, आईना है। तो हम तो क्या कहें सर लालू जी पे, लेकिन वो आ गए जमानत लेकर के बाहर। क्या राजनीति होती है शार्दुल जी, शुक्रिया। तो मैं कह रहा था, आप लोग सब कपल्स ज्यादातर सुन रहे हैं, मुझे पति पत्नी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरी भी पिछले दिनों पहली बार शादी हुई। तो पहली बार हुई तो बड़े लोगों ने समझाया कि रोहित नई नई शादी होती है ना, तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। तो मनोज जी ने कहा कि दीदी और अमित शाह पे भी कुछ सुनाओ। सर मनोज जी, अच्छा मनोज जी की रुचि है ना जो है, वो पॉलिटिक्स में खूब है, ये मैं जानता हूँ। जब इन्होंने लाइव भी सुना था, तो जो पॉलिटिकल सटायर मेरे थे, उसको सबसे ज्यादा इन्होंने ही एंजॉय किया। सर मैं क्या बताऊं आपको, अभी अमित शाह जी से जब बात हुई, तो अमित शाह जी ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है,
बंगाल में। तो मैंने कहा कि कैसे बन रही है, बोले देखो लोग क्या कहते हैं, दीदी को क्या कहते हैं, सब लोग दीदी कहते हैं, ममता तो कोई नहीं कहता नाम से, सब लोग क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो बोले दीदी तो विदा तो होगी। तो अब देखेंगे 2 मई को कि वो विदा होती है या नहीं होती है ना। दीदी तो विदा होगी क्योंकि शादी तो होगी, दीदी की विदा तो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भाजपा वालों का कहना है, अब जो भी होगा देखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी अद्भुत है। कौन इसमें आगे है, कौन कृष्ण है, कौन अर्जुन है, ये लोगों को पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने, महाराष्ट्र ने और मुंबई ने तो बहुत कुछ राजनीति में हो या सब कुछ झेला है। मनोज जी ने कहा मोदी जी पे सुना दो। सर मतलब मैं आपको बताऊं, आप क्या चाह रहे हो, मतलब इन दिनों पे जो मुझे आप जेल भेजना चाह रहे हो तो बोलो मोदी जी पे कुछ कहो, मतलब अब आप नहीं, वो भी जेल लेंगे। मोदी जी का जो कहना है वो तो मोदी जी उनके जैसा कोई आ नहीं पाया। देखिए हमारे देश में बड़ा अद्भुत काम है, पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बोलते नहीं थे, अब ऐसे हैं जो चुप नहीं होते हैं। अद्भुत मामला है, मतलब इनका जो मामला है वो बड़ा अद्भुत है। मैं इन पे भी आऊंगा, लाखों में एक है। हाँ, अब वो ठीक है, इसमें भी कई कैटेगरी है। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे, अगर आप भाजपा के समर्थन में कोई कमेंट कर देते हैं तो आप भक्त कहलाते हैं, और अगर विरोध में कोई कमेंट कर देते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। गुड 1% as usual। तो लेकिन ठीक है, देश में सबकी सरकार, सबको मौका मिलना चाहिए। और अब उम्मीद है कि बस कोविड से, मैं ये जरूर जानता हूं कि जितनी भी बात हम लोग कर लें सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन केवल मोदी जी में ही जो ताकत है कोविड से निकालने की। मैं जानता हूं कि उन्होंने भले ही चुनावी रैली के कारण ध्यान न दे पाए हो ज्यादा, लेकिन अगर वो ठान लेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग कोविड से मुक्ति पा लेंगे, ऐसा मेरा निजी मानना है। हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ठीक है। हम लोग तो देखिए सर कोई पार्टी के होते नहीं है, हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं और वही सुनाते हैं। और मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे तो घर में ही सर, मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं मोदी जी को मानता हूं और मेरी वाइफ जो है वो अरविंद केजरीवाल की समर्थक है। तो घर में ही विकास नहीं हो रहा है। आप बताऊं मैं आपको, मतलब घर में बड़ी अजीब स्थिति है। मनोज जी ने कहा कविता हो जाए, तो मैं कविता आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। और देखिए ये जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं महिलाओं को तो बहुत सम्मान करता हूँ घर में। उषा जी सच में बता रहा हूँ मैं आपको, हमारा देश बन के रह गया है घर, मतलब बातें बहुत हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अपनी अपनी बात है। तो मैं एक कविता आपको, आपके अच्छे दिन आए कि नहीं। अब ठीक है गौतम जी, जब हम लोग लाइव प्रोग्राम करेंगे ना तो हम बताएंगे। अब ऑनलाइन आप घर में से ये बात मत पूछिए, वरना मुझे भी राजनीति की तरह, नेताओं की तरह झूठी बोलना पड़ेगा कि अच्छे दिन। तो महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती है। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती। मतलब महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें तो फिर बड़ी के लिए अपने को तैयार रहें। तो आइए, स्वर्ग मत देना, स्वर्ग मत देना। हाँ, स्वर्ग मत देना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो स्वर्गवासी बना देंगे। बिल्कुल सर, मतलब मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप ये कह पा रहे हैं घर पे। ये आप बहुत हिम्मत ही है सर। मैं अंतिम रूप से कविता आपको सुनाता हूँ। कविता जी शुक्रिया। अब आप लोगों ने मुझे जितना भी समय दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कविता मैं आपको अब सुनाता हूँ, चूंकि लॉकडाउन में हम लोग हैं, और एक कविता अंतिम रूप से सुनिए, जरूर सुनाएं। शुक्रिया डॉक्टर उषा जी। कि जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। अब 1 मिनट बस अंतिम, मैं आपके बीच में हूँ आज सुना, इसलिए पुरुष पे कुछ कहे तो बस संपत्ति जी सुनिए। हम लोग बहुत जल्दी दोबारा भी मिलेंगे, और आप मेरा कभी भी आप लोग, हम लोग सोशल मीडिया पे भी बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें, हम लोग लगातार टच में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 मिनट अब मुझे ध्यान से सुनिए
आपको अच्छा लगेगा। और मैं फिर से डॉक्टर मनोज जी का, डॉक्टर भावना जी का और सारे रोटेरियन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मुझे अच्छे से सुना। मैं सुनाता हूं अंतिम रूप से एक कविता 1 मिनट की, सुनिए कि जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई है, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। सड़कें खाली हैं पर लॉन्ग ड्राइव पर जा नहीं सकते, लोगों के हाथ साफ है पर मिला नहीं सकते, अब परेशान कर रही रोज घर में लुगाई है, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। प्रदूषण अब खत्म होते जा रहा है, आसमान अब साफ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने शेयर किया, किसी ने कहा कि प्रदूषण इतना कम हो गया कि मुझे घर से पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि प्रदूषण इतना कम हो गया कि मुझे घर से एयरपोर्ट साफ दिखाई दे रहा है। सबको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, मगर मजाल है पत्नी को अपनी गलती दिखाई दे। तब सुनाता हूं कि प्रदूषण अब खत्म होते जा रहा है, प्रदूषण अब खत्म होते जा रहा है, आसमान अब साफ नजर आ रहा है, लगता खत्म हो गया पाप है, गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, हालत बहुत खस्ता है क्योंकि घर पर नहीं बाई है, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। कभी सोचा न था ऐसे भी दिन आएंगे, आपने और हमने, असलम जी कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा। कभी सोचा न था ऐसे भी दिन आएंगे, मंदिर मस्जिद के द्वार भी बंद हो जाएंगे। कभी सोचा न था ऐसे भी दिन आएंगे, मंदिर मस्जिद के द्वार भी बंद हो जाएंगे, हमें एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी होगी, पता नहीं अब अगली मुलाकात कब पॉसिबल होगी, काम धंधे बंद होने से रुक गई कमाई है, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। अंतिम 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा कि जरूरत का हर सामान मिल रहा है, सरकार ने कहा कि एसेंशियल तो मिलेगा ही, क्या प्रॉब्लम है, जरूरत का हर सामान मिल रहा है, लेकिन जिसे सहारे की है जरूरत उसे सहारा नहीं मिल रहा। जरूरत का हर सामान मिल रहा है, डॉक्टर उषा जी थैंक यू, जरूरत का हर सामान मिल रहा है, लेकिन जिसे सहारे की है जरूरत उसे सहारा नहीं मिल रहा है। घर परिवार से दूर बनकर के मजदूर, इन्होंने बहुत बड़ी सजा पाई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई, जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं जाते जाते बस केवल 4 पंक्तियां कह देता हूं। डॉक्टर उषा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ब्लेसिंग्स रहेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा भी थोड़ा बहुत नाम जिंदगी में मैं कर लूंगा। शुक्रिया महेश जी, फिर से मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को जिन्होंने मौका दिया। मैंने बहुत सारी बातें यहाँ से कही हैं। डॉक्टर भावना जी, डॉक्टर मनोज जी, सभी रोटेरियंस का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ से कही, तो बस जाते जाते 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा लेता हूं कि गलत फहमियों को, दीप जी सुनिए, कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं पर मेरा इंसाफ कर देना, और जो कुछ भी कहा केवल हंसाने को, उस दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़े टाइम के लिए कोरोना को भुला दिया, कोरोना के दुखों को भुला दिया, सबको हंसा